Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from previous year SimCat, and set is a DI based set, and the set says, in a basketball shooting contest, two kids, Maya and Rohan, played against each other in exactly 5 rounds. In each round, Maya scored points through two types of shots. Inside the paint shot, which earned her 1, 2, or 3 point per shot depending on distance and position, called layup, mid-range, and close three-pointer respectively. Outside three-point shot, which earned her either 4 or 6 point per shot, representing a long jumper and half-court shots. Two pie chart illustrate the percentage distribution of total points scored by Maya in each of the 5 rounds. The first chart shows the how much of her total came from inside the point shot, while the second chart shows the contribution from outside the paint shot. We know the following about Maya's performance. Across all 5 rounds, Maya scored 400 points through inside the paint shot and 300 points through outside the paint shots. In 4 out of 5 rounds, the number of mid-range shot, 2 point shot was more than double than the number of 3 point shots, but less than the half the number of 1 point shot layup. While in the other round, Maya did not make any layup or mid-range shot. Okay. In any round where layup यानी कि 1 point shot were made, at least 10 mid-range point यानी कि 2 point shot was scored. In any round, the number of 4 point shot long range jumpers was more than 3 times the number of 6 point shot half court shots. So point number 5 कह रहा है exactly one round had no 6 point shot, and this was not the same round in which no layup or mid range shot were made. क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते. क्वेश्चन नंबर 1 बोला, इन विच राउंड डिड माया मेक द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोज रेंज 3 point shot. If a total of 36 outside the paint shot were made across round 4 and round 5, what is the difference between the difference in the number of half court shot scored between these two rounds? What is the maximum number of mid range 2 point shot that Maya could have scored in round 1? If Maya made 12 mid range shot in round 5, what is the maximum number of points she could have scored through close range 3 point shot in that round? ठीक है. एक DI का सेट जहाँ पे अपने को डेटा दो चीज का दिया हुआ है. पहला दिया हुआ है कि मतलब पहले तो ये बताया कि एक कैरेक्टर है माया जो कि बास्केटबॉल खेल रही है. बास्केटबॉल में वो दो तरीके से स्कोर कर सकती है, इन पेंट या आउटसाइड द पेंट शॉट. इन पेंट, if she is scoring in that, she can score 1, 2 or 3. If she is going for outside the paint, she can score 4 or 6. अपने को दो पाई चार्ट दिया हुआ है, दोनों में अपने को 1, 2, 3 का डिस्ट्रीब्यूशन और 4 और 6 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. इसके साथ-साथ अपने को पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भाई ये जो पूरा पाई चार्ट है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 400, और ये जो पूरा पाई चार्ट है इसकी वैल्यू होने वाली है 300. इसी का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को यहाँ पे दे रखा हुआ है. क्रॉस ऑल 5 राउंड माया स्कोर्ड 400 पॉइंट थ्रू इनसाइड द पेंट एंड 300 पॉइंट थ्रू आउटसाइड द पेंट. अब ये जो 400 उसमें से राउंड 1 में शी स्कोर्ड फॉर 12.5, राउंड नंबर 2 में, राउंड नंबर 3 में, एंड सो ऑन. इसी तरीके से अपने को यहाँ पे भी दे रखा है. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल. ऐसा एक टेबल बना लिया जिसमें मेरे को पता है कि राउंड नंबर 1 2 3 में ऐसा 400 आने वाला है, 4 6 में ही आने वाला है. ठीक है. 400 में से 1 2 3 में राउंड नंबर 1 में कितना कंट्रीब्यूशन है? राउंड नंबर 1 में 12.5% है, यानी कि 1/8 है, यानी कितना होना चाहिए 50. 30% है, यानी कि कितना होना चाहिए 120. 32.5 है, यानी कि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और इधर आधा और. ठीक है, तो यानी कि 130. ठीक है. 11.25 यानी कि 44, और 25 का आधा इधर 1/4 यानी कि 45. ठीक है. इधर कितना 13.75, 13 होता है 52, 52 और 75 यानी कि 3, यानी कि 55. ठीक. एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ. 5 5 10 कैरी 1, 6 18, 18 और 13 31, 4 और 5 9 40. ठीक है, ये बन गया. सिमिलरली यहाँ पे 300 दिया हुआ, 300 क्या है, यही वाला है ना, यही डिस्ट्रीब्यूशन है 400 और 300. 300 में क्या होने वाला है 21.33 इज फॉर राउंड 1, यानी कि करीब करीब 63 और 63 प्लस इधर एक, तो यानी कि 64 का इधर है. ठीक है. 12.5 नहीं 12%, यानी कि 36. इधर कितना 13.33 यानी कि 39, और इधर ये एक बढ़ गया होगा यानी कि 40. ठीक है. इधर कितना है 28, 28 का 3 यानी कि 8 3 24, कैरी 2 इधर 84, एंड दिस इज 25.33 यानी कि 75, और एक और जोड़ लेंगे 76, 76. तो एक बार जोड़ लेते हैं. 6 4 10 4 16
और 20 2 2 6 8 3 11 4 15 और 15 30 ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या करा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था उसके हिसाब से राउंड नंबर 1 में 1 2 3 का स्कोर का कंपोजिट जो बना होगा 50 वो लिख दिया, ऐसे ही 120 130 और ये लिख दिया। अब ये 1 2 3 कैसे बना होगा वो 1 से लेके 5 तक अपने को दिया। अभी मैंने क्या करा, पॉइंट नंबर 1 को यूज़ कर लिया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 3 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है इन 4 आउट ऑफ 5 राउंड्स द नंबर ऑफ मिड रेंज यानी कि 2 पॉइंट शॉट वाज मोर देन द डबल ऑफ 3 पॉइंट शॉट बट लेस देन द हाफ द नंबर ऑफ 1 पॉइंट शॉट 1 point layup while in the other round Maya did not make any layup or mid range। अच्छा, लेअप और मिड रेंज में कितना पॉइंट बनता है जरा चेक करें। लेअप और मिड रेंज में आपका पॉइंट आता है 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। अपने को क्या पता है, लेअप और मिड रेंज में 2 पॉइंट आता है और इधर कितना है, 3 पॉइंट आने के लिए 3 पॉइंटर चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट फिर से पढ़ता हूँ। इन 4 आउट ऑफ 5 राउंड द नंबर ऑफ मिड रेंज शॉट यानी कि 2 पॉइंट शॉट वाज मोर देन द डबल ऑफ द नंबर ऑफ 3 पॉइंट शॉट। ठीक है, लेट्स से किसी भी मतलब ये जो 4 राउंड है, लेट्स से इसने क्या करा होगा, 2B प्लस 3C ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये ना मान लेते हैं कि जैसे बी नंबर ऑफ राउंड्स, सॉरी बी नंबर ऑफ पॉइंट शॉट है जो कि उसने मल्टीप्लाई करो और ऐसे ही सी नंबर ऑफ राउंड है जो कि वो करा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इन 4 आउट ऑफ 5 राउंड द नंबर ऑफ मिड रेंज शॉट यानी कि ये वाले जो शॉट है, ये बी वाले शॉट वाज मोर देन डबल द नंबर ऑफ 3 पॉइंट शॉट। ये डबल से भी ज्यादा है किसके, इसके, यानी कि बी की वैल्यू इज डबल से भी ज्यादा है, 2C से भी ज्यादा है। फिर से ये लाइन समझना। इन 4 आउट ऑफ 5 राउंड द नंबर ऑफ मिड रेंज शॉट यानी कि 2 पॉइंट वाले जो शॉट है वो मैंने मान लिया था बी वाज मोर देन डबल द नंबर ऑफ द 3 पॉइंट शॉट, वो मैंने मान लिया था सी, यानी कि सी नंबर ऑफ 3 पॉइंट वाले शॉट है। और ये जो नंबर ऑफ शॉट है ये इसके डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर सी 1 है तो बी डबल यानी कि 2 और उससे ज्यादा हो सकता है, यानी कि 3 या मतलब 4 या 5 होना चाहिए। अगर सी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 + 4 से भी ज्यादा, यानी कि इट हैज टू बी 7 8 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, एक पॉइंट तो अपने को ये मिल गया, बट लेस देन द हाफ द नंबर ऑफ 1 पॉइंट शॉट। ठीक है, इसको ले लेते हैं कि भाई ये ए था और A/2 है विच इज बी के ऐसा। ठीक है, विच इज लेस देन द हाफ द नंबर ऑफ 1 पॉइंट शॉट वाइल इन द अदर राउंड यानी कि जो लास्ट राउंड है, मतलब जो भी ये 5 में से 4 राउंड के बारे में बताया है। दिस इज फॉर 4 राउंड्स। ठीक है, सही है यहाँ पे। अभी फिर से ये लाइन को समझा रहा हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 4 राउंड्स में क्या कह रहा है, किसी 5 में से 4 राउंड में ऐसा हो रहा है द नंबर ऑफ मिड रेंज शॉट 2 पॉइंट्स यानी कि ये वाला पॉइंट वाज मोर देन डबल द नंबर ऑफ 3 पॉइंट शॉट, यानी कि मैंने ये लिख दिया कि ये बी है और ये सी है और ये क्या होगा, बी की वैल्यू है जो वो सी के डबल से भी ज्यादा है, तो मैंने ये लिख दिया, ऐसा इक्वेशन बना लिया। वाइल कह रहा है कि ये जो ए था मैंने ए ले लिया फॉर 1। ठीक है, इसका ले लिया है ए, इसको मान लिया है बी और इसको ले लिया सी। तो वो जो ए है ये आधे से भी कम है, मतलब आधे से भी कम है ऐसा। क्या बोला हुआ फिर से पॉइंट, बट लेस देन द हाफ द नंबर ऑफ द ये, यानी कि लेट्स से अगर ये 10 है तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, 10 का डबल 20 से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये 21 हो सकता है, 22 हो सकता है ऐसा। या अगर बी की वैल्यू है 20, ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू इसके डबल से भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब 40 से भी ज्यादा होना चाहिए। या इसको उल्टा सोचो कि ये अगर ए की वैल्यू 40 है तो 40 का आधा 20, 20 से कम होना चाहिए बी की वैल्यू, कुछ हम ऐसा ये इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बट लेस देन द हाफ द नंबर ऑफ द 1 पॉइंट वाइल इन द अदर राउंड यानी कि जो 5 में से 4 राउंड ये हो गया, जो 5वां राउंड है माया डिड नॉट मेक एनी लेअप्स, और ये यानी कि जो 5वां राउंड है माया ने क्या करा, वो जो भी पॉइंट स्कोर करा वो 3x के फॉर्म पे करा। यानी कि वो 3x वाला कौन सा हो सकता है, वो ये हो सकता है क्योंकि 3x का यही है, या ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड राउंड ऐसा कह रहा है कि भाई वो जो माया है जो थर्ड राउंड मतलब जो रिमेनिंग फिफ्थ राउंड है, 4 राउंड में तो वो 1 भी कर रही है, 2 भी कर रही है और 3 भी कर रही है। ठीक है, बट एक राउंड ऐसा जो जहां पे केवल 3 कर रही है, वहां पे 1 और 2 0 है, ऐसा पक्का पता है। बाकी राउंड में वो 1 2 3 में से कुछ भी कर सकती है, उसके बारे में नहीं बताया हुआ। बट अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ कि जो वो फिफ्थ राउंड है जहां पे वो मल्टीपल ऑफ 3 लेने वाली है, वो राउंड कौन सा हो सकता है, वो राउंड नंबर 2 बन सकता है, राउंड नंबर 4 बन सकता है, बिकॉज बाकी जितने भी हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 से मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लिया। पॉइंट नंबर 3, इन एनी राउंड वेयर लेअप
1 point was made, at least 10 mid-range point shot were scored. अच्छा, किसी भी राउंड में जहाँ पे 1 पॉइंट को मारा गया है, वहाँ पे कम से कम 10 2 शॉट वाले लिए गए, यानी कि 10 पॉइंट्स वाले, सॉरी 2 पॉइंट्स वाले 10 शॉट मारे गए। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 को भी होल्ड करना चाहूँगा। Point number 4. In any round, the number of 4-point shot jumpers was more than the 3 times the number of 6-point shot. ठीक है? यानी कि लेट्स से 4x प्लस 6y है, ये जो स्कोर है, ऐसा है ना, 4x प्लस 6y है, या अभी जो हम ये बात कर रहे थे, दिस वाज a प्लस 2b प्लस 3c, ऐसा ही था ये वाला जो स्कोर बन रहा था, ये जो जितने स्कोर बन रहे थे। सिमिलरली ये जो स्कोर्स हैं ये क्या है, 4x प्लस 6y है। इसमें कह रहा है ये जो एक्स की और वाई की जो वैल्यू है उसके रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इन एनी राउंड द नंबर ऑफ 4 पॉइंट लॉन्ग जंपर्स वाज मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर, यानी कि 3 टाइम्स से भी ज्यादा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 3y से भी ज्यादा होने वाली है। यानी कि अगर एक शॉट यहाँ पे मारा तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 या 5 हो सकती है, 3 गुने से भी ज्यादा। ठीक है? अगर y की वैल्यू 2 है तो यानी कि x की वैल्यू 6 से भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 7 8 9 कुछ ऐसा हो सकती है। ये समझाना चाह रहा है पॉइंट नंबर अपने को 4 में। ठीक है? पॉइंट नंबर 5, एग्जैक्टली वन राउंड हैड 6 पॉइंट शॉट। एग्जैक्टली एक राउंड ऐसा था जहां पे 6 पॉइंट शॉट था। ठीक है? एंड दिस वाज नॉट द सेम राउंड इन व्हिच नो लेअप और मिड रेंज शॉट वाज मेड। ये वो राउंड नहीं था जहां पे इन भाई साहब ने ये मारा होगा, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 3 वाला राउंड नहीं था। ठीक है? पॉइंट नंबर 5 फिर से पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली वन राउंड ऐसा था जहां पे नो 6 पॉइंट शॉट वर मेड, यानी कि वो राउंड एक ऐसा होगा जहां पे मल्टीपल ऑफ 4 ही तैयार होगा और कुछ भी तैयार नहीं होगा। ठीक? मल्टीपल ऑफ 4 यार, ये तो सारे ही हैं, तो अभी यहाँ पे डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है। बट ये भी कह रहा है कि वो राउंड नहीं है जहाँ पे वो मल्टीपल ऑफ 3 वाला मैच हुआ था। ठीक है? मल्टीपल ऑफ 3 वाला मैच कहाँ हुआ था? ये हुआ था और ये हुआ था। ऐसा। क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। और इन दोनों में से कोई एक ऐसा कह रहा है कि वो नहीं है जहाँ पे वो मल्टीपल ऑफ 4 वाला मैच होगा। चलो, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग। यहाँ पे अपने को क्या पता है, राउंड नंबर 1 2 3, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। पहले पूछा हुआ इन विच राउंड डिड माया स्कोर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोज रेंज 3 पॉइंट शॉट। ठीक है? 3 पॉइंट शॉट यार, 3 वाला तो या तो ये भी हो सकता है, अगर मान लो ये वाला वो राउंड है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो 40, या ये हो सकता है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये बन जा सकता है 15। ठीक है? इफ अ टोटल 36 आउटसाइड द पेंट शॉट वर मेड अक्रॉस राउंड 4 एंड 5। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द नंबर ऑफ हाफ कोर्ट शॉट एज स्कोर्ड बिटवीन दोस टू राउंड। ठीक है? थोड़ा चलते हैं यहाँ पे, दिमाग लगाते हैं। आई विल स्टार्ट विद दिस 4 और 6 में, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे 2 वैल्यू को तोड़ना है, ये ज़्यादा आसान है। मेरे को यहाँ पे 3 वैल्यू में तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब यहाँ पे मेरे को ए बी सी तीनों की वैल्यू सोचनी पड़ेगी, विच इज बिट डिफिकल्ट। मेरे को यहाँ पे 4x और y की वैल्यू सोचनी पड़ेगी, विच इज थोड़ा इजियर साइड पे। ठीक है? लेट्स थिंक ऑफ 64 कि 64 कैसे बनेगा। अगर मेरे को 64 बनाना है तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ। ठीक है? अगर मेरे को 64 बनाना है तो 64 के लिए अपने को क्या पता है, y की वैल्यू को अगर मैं 1 लूँगा तो x की वैल्यू को कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है? क्या मैं ये वो ले सकता हूँ क्या? मतलब पहले तो मैं इधर पूरा बड़ी वैल्यू लेता हूँ, बिकॉज़ मेरे को पता है कि x की वैल्यू इज़ ग्रेटर, तो y की वैल्यू को 0 लेके चलता हूँ। ठीक है? x की वैल्यू को ले लेता हूँ लेट्स से 16, और y की वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है? व्हिच इन अ वे मेक सेंस, बन सकता है। अच्छा, x की वैल्यू ले सकता हूँ, इसके बाद क्या? क्या मैं 11 ले स सॉरी 15 ले सकता हूँ, बट उस केस में मेरे को y की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगी। क्या मैं x की वैल्यू को 14 ले सकता हूँ? यानी कि उस केस में मेरे को क्या मिलेगा? y की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगी अगेन, बिकॉज़ 8 अगेन नहीं मिलेगा। ठीक है? अ, इधर से सोचते हैं, y की वैल्यू को 1 लेके ना, 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 से अपना 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 64 माइनस 2 माइनस 12। ठीक है? y की वैल्यू को 2 लेते हैं, y की वैल्यू को 1 ले रहा था तो 64 माइनस 6। ठीक है? थोड़ा समझना ना, मैंने पीछे जो बोला थोड़ा वो कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट इसके में मैं y पे चेक कर रहा हूँ। y की वैल्यू पे चेक कर रहा हूँ। y की वैल्यू को जब 0 लिया तो 16 बन सकता है। y की वैल्यू को 2 लूँगा तो क्या बनेगा? 64 में से 12 गया तो कितना बचा? 64 माइनस 12 कितना होता है? 52, यानी कि क्या हो सकता है? कितना होता है? 13। ठीक? अच्छा, इसके बाद क्या बन सकता है? y की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? 3 और कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है? तो 4 6 जा 24 ही है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ निकल रही हैं, ये वैल्यू के अंदर एक कंडीशन है जिस पे ध्यान देना है। वो कंडीशन क्या है? x की वैल्यू हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ मतलब y, ऐसा। इसमें से तो ट्रू है,
इस वाले में 13 और 2 मेक सेंस। इसमें तो यार बन ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि 4 3 जा 12 और 12 से तो ये कम है, यानी कि ये वाला केस मैं कंसीडर नहीं कर सकता। यानी कि 64 के लिए क्या बन सकता है, 16 और 0 बन सकता था, या 13 और 2 बन सकता था। अच्छा, सेम मैनर में आई हैव टू चेक फॉर ऑल दी वैल्यूज। जैसे ही मैं चेक करूंगा मेरा आंसर्स यहाँ पे निकाल देना शुरू कर देगा। चलो वेरी क्विकली लेट्स गो फॉर 36 40 एंड एवरीवन। ठीक है, 36 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 और 0 ले लेता हूँ। तो y की वैल्यू को 1 रखने का मतलब नहीं, y की वैल्यू को 2 रखूंगा। y की वैल्यू को जैसे ही 2 रखूंगा तो क्या बनेगा, y की वैल्यू 2 मतलब 12 और इधर क्या आ जाएगा 6। यार ये तो यही गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ क्यों हो गया, बिकॉज ये इस कंडीशन से तो ये देख रहे हो, ये कंडीशन तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 9,0 होना चाहिए था। यानी कि ये जो कंडीशन नंबर 5 में जो बोला था, जो कह रहा था कि एग्जैक्टली एक राउंड ऐसा है जहां पे 6 नहीं मारे गए, तो वो राउंड यही होना चाहिए 36 वाला। ठीक है, ये भी अपने को मिल गया। यानी कि यहाँ पे ये 16-0 नहीं 13-2 वाला केस ही लेना पड़ेगा। समझ आया ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट तुम्हें क्लियर नहीं हुआ तो पीछे जाके जरूर एक बार रिविजिट करना, जो मैंने ये पूरा लॉजिक समझाया। ठीक है, मैंने क्या करा, इस पूरे सेट को नंबर क्रंचिंग पे लेके चला गया। कंडीशन जो दी हुई थी, कंडीशन को थोड़ा ऐसा बढ़िया से लिख दिया, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा, 13 and 2। ठीक है, ऑल्सो ये वो वाला मिल गया 36, जहां पे ये पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 5 क्या था, एक्जैक्टली वन राउंड हैड 6 पॉइंट शॉर्ट, एक्जैक्टली वन, नो 6 पॉइंट शॉर्ट, ये वाला राउंड मिल गया। एंड दिस वाज नॉट द सेम राउंड इन विच नो लेअप। ये वही राउंड है जहां पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं मारा गया है। यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 जो ये दो राउंड में मारा जा सकता था, उनमें से ये नहीं है। यानी कि यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 यही मारा गया होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 0 0 और 15। ठीक है, यानी कि यही एक राउंड है जहां पे मल्टीपल ऑफ 3 मारा गया है। अच्छा, ये भी अपने को बढ़िया सा मिल गया। ठीक, सही है, क्योंकि अपने को क्या पता था मल्टीपल ऑफ 3 इन्हीं दोनों में हो सकता था। और यहाँ बोल दिया कि यार ये वो राउंड नहीं है, तो यहाँ पे ये मिल गया, तो यहाँ से अपने को ये भी मिल गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 40, 40 पे क्या है, 10 and 0। ठीक है, 10 and 0, इसके बाद क्या होगा, 2, और इधर कितना आएगा, 28, यानी कि 7,2। ये बन सकता है 7,2। 10 और 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 वाला केस ले चुके हैं। 7,2 बन सकता है, 2 3 जा 6, इससे ज्यादा मेक सेंस। अच्छा, इसके बाद कुछ बना सकते हैं क्या, 4 4 6 जा हाँ 24 - 16 4, यानी कि ये नहीं बन सकता। तो इस केस में क्या होना चाहिए, 7,2। ठीक है, अच्छा 84 के लिए सोचते हैं। 84 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 21,0। हालांकि ये केस नहीं लेंगे, बट इसके बाद मेरे लिए आसान होता है सोच पाना। तो बेसिकली मैं क्या करूँ ना, पहला वैल्यू सोच रहे तो मेरे को पता है ना, इनका 3 3 का गैप आता जाएगा, तो यानी कि 18,2। तो देख लो बन रहा है ना 12 और 18, 12 और हाँ 18, और ये सही है। यहाँ पे क्या बन सकता है, 4 और 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 15 4 जा 60 और 24, और 4 3 जा 12 से ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे 6 ले सकता हूँ, 6 लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 12। अब यार ये तो नहीं बन पाएगा, ये इसलिए नहीं बन पाएगा बिकॉज इस कंडीशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर गया। यानी कि फॉर 84 इट कुड बी 2 केसेस। पहला बन सकता है 18,2 वाला, दूसरा बन सकता है 15,4 वाला। ठीक है, अच्छा 76 के बारे में इसी तरीके से सोच लेते। 76 की पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 19 और 0 पे। 19 और 0 के बाद क्या मिलेगा, 2 और 16 पे, यानी कि 16 4 जा 64 प्लस 12, और ये सही भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके बाद कहाँ मिलेगी, 4 और 13 पे, ये भी सही है। इसके बाद कहाँ मिलेगी, 6 और 11 पे, ये सही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 16,12 आ सकता था, और 13,4 आ सकता। ठीक है, अब हुआ क्या, इस पूरे प्रोसेस में मेरे को 4 और 6 मिल चुका है, जिसकी वजह से मैंने काफी हद तक चीजों को फिगर आउट कर लिया है। चलो थोड़ा जगह बनाते हैं, बिकॉज सेम मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी और इधर वाला पार्ट, यानी कि ये जो 400 का कंपोजिशन है उधर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इधर दिमाग लगाते हैं। अब अपने पास क्या था, राउंड नंबर 1 में अपने को पता था कि
राउंड नंबर 1 में अपने को पता है 50 है, राउंड नंबर 2 में पता है 120 है। अब 120, 50, ठीक है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इसी तरीके से अपने को बनाना पड़ेगा, यानी कि इधर अपने को क्या पता है, ए प्लस बी प्लस 3c की वैल्यू बननी है, जो भी बननी है वो देखना है अपने को, ठीक है? ये इक्वेशन पे दिमाग लगाना है जिसमें से अपने को रिलेशन दिया हुआ है कि b इज ग्रेटर देन 2c, ठीक है, ऐसा, और a/2 इज ग्रेटर देन b, ये दो रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है? 50 पे अगर दिमाग लगाएं तो 50 क्या बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। एक चीज अपने को और दी हुई थी, वो पॉइंट था जहां पे लिखा हुआ था, शायद मैंने मिस कर दिया है, यहाँ पे मेंशन करना, जहाँ पे था ना कि एटलीस्ट 10 मिड रेंज मारेंगे मारे, हाँ पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला था, इन एनी राउंड वेयर 1 पॉइंट वाज मेड एटलीस्ट 10 मिड रेंज शॉट वाज मेड, ठीक है? जहाँ पे एक मारा है तो वहां पे कम से कम 10 तो लेना ही लेना है, कुछ ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है? अब यार यहाँ पे ऐसा है ना कि मान लो अगर 55 बनाता हूँ तो 55 का 10 लेने का मतलब 10 टू जा 20, रिमेनिंग का कुछ ना कुछ बना सकता हूँ, इधर भी कुछ ना कुछ बना सकता हूँ, इधर भी कुछ ना कुछ बना सकता हूँ, ठीक है? बहुत कुछ अब यहाँ पे यार मैंने ले रहा है अपने को। लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, बिकॉज क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन नंबर 2 तो मेरे को मिला हुआ है, ये तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखते हैं क्या बोला हुआ। इन विच राउंड डिड माया मेक द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोज रेंज 3 पॉइंट शॉट, ठीक है? एज इफ नाउ राउंड नंबर 4 तो है ही है, ये 15 इसने मारा है। राउंड नंबर 5 पे कर सकती है क्या स्कोर? अगर राउंड नंबर 5 में करेगी, यानी कि राउंड नंबर 5 में अगर उसका 15 से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 16 है, ठीक है, अगर वो 16 है तो यानी कि 16 3 जा 48, यानी कि बगल में इसका और ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज बाकी सारे राउंड ऐसे हैं जहां पे वो 1 2 3 तीनों करने वाली है, ठीक है? तो यानी कि अगर ये 15 है, मतलब सी की वैल्यू अगर 15 मिल चुकी है, तो बी की वैल्यू यार 30 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। राउंड नंबर 5 तो पॉसिबल नहीं है। राउंड नंबर 2 में पॉसिबल है क्या? राउंड नंबर 2 में पॉसिबल है 120 बनाना। तो सोचें, अगर मैं 15 ले लेता हूँ 3 वाला, ठीक है, विच इज 45, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, कम से कम मेरे को 31 लेना पड़ेगा 2 वाला, विच बिकम्स 2 1 जा 2 और 162, और स्कोर क्या बन रहा है 120। यार ये तो नहीं बन सकता, ठीक है? मैं मिनिमम 15 भी लेके चल रहा हूँ तब भी वो नहीं बन सकता, तो यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, राउंड नंबर 4। सीबीडी तो नहीं करेंगे ना, बिकॉज अपने को साफ दिख रहा है यार, ये तो आंसर 15 तो मैक्सिमम तो मिला हुआ है, तो वाई आई शुड गो फॉर सीबीडी, ठीक है? बिकॉज बाकी में अगर 15 बन ही नहीं पाएगा ना, ऐसा सोचो कि 15 के बियॉन्ड में कहीं नहीं ले पाऊंगा। अगर 130 पे भी लेता हूँ, ऐसा सोचते हैं, मान लो ऑप्शन में सीबीडी की जगह पे ये होता तब भी नहीं बन सकता था ना। अगर मैं राउंड 3 को कंसिडर करता हूँ, लेट्स से अगर मेरा 15 ये वाला पार्ट है, बिकॉज 15 मिला हुआ है तो यानी कि ये 16 होना चाहिए था। अगर 16 ये है तो यानी कि 2 वाले कितने होंगे, 16 इंटू 2 से भी ज्यादा, जो कि मेरे को 150 के ऊपर का स्कोर लेके चले जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का, सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ टोटल 36, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, द इफ टोटल ऑफ 36 पॉइंट शॉट वर मेड अक्रॉस राउंड 4 एंड राउंड 5, 36 बनाए गए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाफ कोर्ट शॉट स्कोर बिटवीन दीज टू राउंड? अगर 36 बनाएंगे तो कैसे बन सकता है, 20 के साथ 18 तो कितना हो जाएगा 38, नहीं 20 के साथ 17 नहीं बन पाएगा, यानी कि ये वाला लेना चाहिए। 19 का 19 के साथ 13 4 17, है ना, 19 और 17 36 होता है, यानी कि ये दोनों को अपने को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि ये वाले केस की बात हो रही है, हाईलाइट करता हूँ ये वाला केस, ठीक है? उस केस में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हाफ कोर्ट, हाफ कोर्ट का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, यानी क्या होना चाहिए, सॉरी हाफ कोर्ट बोला है ना, हाफ कोर्ट क्या होता है अपना, हाफ कोर्ट वो 6 पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाफ कोर्ट क्या था अपना, लॉन्ग रेंज, हाँ हाफ कोर्ट वो 6 पॉइंट, ठीक है? तो हाफ कोर्ट क्या था 6 पॉइंट था, तो 6 पॉइंट का तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, यानी क्या होना चाहिए था, जीरो। ऑप्शन नंबर ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिड रेंज शॉट माया कुड हैव स्कोर्ड इन राउंड 1? राउंड 1 में मैक्सिमम वो कितना कर सकती है, ठीक है? अगर राउंड 1 में स्कोर देखें कितना है, ए प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल्स टू 120, कह रहा है कि माया मैक्सिमम कितना कर सकती है 2 पॉइंट शॉट का। ऑप्शन से जाएं, अगर मैं 13 लेता हूं, ठीक है, तो यानी कि इधर मेरे को कुछ 26 जैसा लेना पड़ेगा, है ना? इफ हाँ, क्योंकि अपने को ये रिलेशन क्या बोला हुआ है कि इट इज डबल से भी ज्यादा ना, तो 13 दूनी का 26, 26 से भी ज्यादा 27 के आसपास, ठीक है, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। और ठीक है,
और इधर कितना लेना पड़ेगा, 13 से भी कम, मतलब 13 का आधा कितना होता है, 6 पकड़ लेते हैं, 6.5, 6 से भी कम, ठीक है। अच्छा, उस केस में मेरे को स्कोर कितना बनाना था, 50 बनाना था यार। यहाँ पे ध्यान दो तो ये क्या है, 26 तो यही बन रहा है और 27 यहाँ बन रहा है। यानी कि अगर मैं सी की वैल्यू 0 भी लेता हूँ तब भी ये क्या बन जाएगा, 51 बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि मैं 13 तो नहीं ले सकता, ठीक है। लेट्स थिंक फॉर 12 ऑल्सो ना। अगर मैं 12 लेता हूँ, ठीक है, तो यानी कि 24, और इधर क्या ले सकता हूँ, 24, 12 दूनी का 24 से भी ज्यादा, यानी कि 25 एंड 26 जैसा चीज ले सकता हूँ, 25 या 26 जैसा चीज ले सकता हूँ। तो 24 प्लस 26 बन जाएगा 50, जिसमें कि सी की वैल्यू को मैं ले लूंगा 0। मेक सेंस। मैं क्या बना सकता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ माया मेड 12 मिड रेंज शॉट इन राउंड नंबर 5। अच्छा, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं के लिए। इफ माया मेड 12 मिड रेंज शॉट इन राउंड नंबर 5, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, ए प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 55, जिसमें कि ये कह रहा है कि भाई उसने 12 मार दिया, यानी कि यहाँ पे उसको 24 मिल चुका है। अच्छा, अगर यहाँ पे 12 मारा है तो यानी कि यहाँ पे क्या बन सकता है, 12 से ज्यादा, यानी कि 25, 26 जैसा कुछ, ठीक है, ऐसा 25 26 जैसा कुछ, ठीक है। थोड़ा जगह बना लेते हैं, थोड़ा अपने को क्लियर दिखाई देगा, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, अपने को क्या पता था, ए प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 55, जिसमें कि b की वैल्यू को दे रखा है 12, यानी कि ये आ जाएगा 24। अगर ये 12 है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 25, 26 ऐसा कुछ बन सकती है, ठीक है। अगर 25 लेंगे तो 25 का मतलब सी की वैल्यू क्या बनेगी, वो देखा जाए। अगर 25 लूंगा तो दिस विल बिकम 49, ठीक है। केस नंबर 1 ले लेते, 49 बन जाएगा। अगर ये 49 है तो यानी कि सी की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, 6 लेके 2 बना सकते हैं, विच इन अ वे मेक सेंस। अच्छा, अपने को क्या करना था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट बोला था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट तो यहीं पे बनना चाहिए, बिकॉज क्या बोला था कि अगर ऐसा होता है तो व्हाट इज द मैक्सिमम। अब यार ये देखना, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, बिकॉज इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं 26 ले सकता हूँ, 26 तो ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को 55 बनाना है, तो बाकी का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो 25 के बाद मैं 28 ले सकता हूँ, ठीक है, 28, 24, ऐसा 28 और 24 करने पे कितना बन गया, 52, इस केस में बनेगा 3, ठीक है। तो यार ये तो वैल्यू रिड्यूस होते जा रही, तो मेरे को मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 6। पूछा गया था अपने को व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कुड हैव स्कोर्ड इन क्लोज पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6 होना चाहिए, ठीक है। मतलब लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छा सेट, दिस वाज प्योरली ऑन अ न्यू कंसेप्ट, मतलब अभी पुराने दो प्लेलिस्ट में तुम ऐसा कोई सेट नहीं देखे होगे, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस सॉल्यूशंस को देखें, मतलब इवन इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एक बार जरूर देखो, ठीक है। एंड एग्जाम वाले फेज में अगर तुम फेमिलियर हो तभी ये बन पाएगा, नहीं तो ये नहीं बन पाएगा, मतलब क्योंकि ना ये पार्ट सोच पाना एग्जाम वाले फेज में डिफिकल्ट है। अगर तुम ये सोच लेगे तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल एंगेज इन दिस पार्ट एंड यू विल एंड अप विथ 40 मिनट्स और कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब ये ऐसा था ना कि बिकॉज मैंने ये वाला पार्ट कर दिया एंड आई जंप टू द क्वेश्चन पार्ट एंड लकीली मेरे को सारे क्वेश्चन मिल गए। अगर मैं यहाँ उलझा होता तो मेरे को यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता। दिस वॉज द सेम थिंग विच आई डिड बिफोर मेकिंग द वीडियो। मैंने मतलब पहले भी एक्जैक्टली यही करा, मैंने यहाँ पे बनाया एंड आई जंप इन टू क्वेश्चन पार्ट और मैंने देखा मेरा आंसर्स निकल गया। तो मेरे को फिर रियलाइज हो गया यार ये शायद मेरे को करना ही नहीं था, अगर मैं उलझ जाता तो मैं बहुत गंदा फंसता, ठीक है। सो मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट एकदम है, मतलब कहीं से भी इजी सेट नहीं था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस सेट को पूरा सॉल्यूशन वाइज देखो एंड दैट्स इट। ऑल्सो आई हैव यूज्ड दिस न्यू टेम्पलेट फॉर द वीडियो सॉल्यूशन। प्लीज लेट मी नो कि अगर ये वाला सॉल्यूशन बेहतर है या मतलब सॉरी ये वाला टेम्पलेट अच्छा है या पहले वाला टेम्पलेट अच्छा है, मतलब दी ब्लू कलर और दिस वन, ठीक है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।